فقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان اگر تکفروا تم سب کفر کرو گے انتم تم ومن فی الارض اور جو لوگ زمین پر ہیں جمیعاً سارے کے سارے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ لغنی البتہ بے پرواہ ہے لاپرواہ ہے حمید قابل تعریف ہے تعریف کے قابل ہے۔ جی، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اگر کفر کرو گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں جو ہے وہ ذرا برابر بھی جو ہے وہ کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے۔ تم کفر کرو، تم شکر کرو، یہ تم پر ہے، یہ انسانوں پر ہے۔ اگر انسان شکر کرے گا تو اپنی جان کے لیے شکر کرے گا، اگر کفر کرے گا تو اس کا وبال بھی اس کی اپنی جان پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ شان میں یکتا ہے، یگانہ ہے، بالکل بے پرواہ ہے اور نہایت تعریف والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم سے کہا، اور یہاں جو ہے وہ بیسیکلی خطاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کے قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر کفر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے، کفر کرو گے، کرتے رہو، یہ جو ہے نا اس کا وبال تم پر ہوگا۔ اگلی آیت۔ علم کیا نہیں یأتیکم آئے تمہارے پاس نبأ خبر الذین ان لوگوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے قوم نوح قوم نوح سے وعاد اور عاد وثمود اور ثمود والذین اور وہ لوگ جو کہ من بعدہم ان کے بعد تھے لا نہیں یعلمہم کوئی جانتا انہیں الا اللہ مگر اللہ تعالی۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بیسیکلی کیونکہ فرسٹ ایڈریسر جو ہے وہ عرب لوگ ہیں نا، تو عرب کے ارد گرد جو بستیاں تھیں جن کے واقعات عرب لوگوں کو پہنچ چکے تھے، جیسے عاد قوم کا، سمود قوم کا واقعہ، نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کی خبر نہیں آئی؟ والذینہ من بعدہم، اور ان کے بعد جو ہے وہ جو قومیں ہیں ان کی خبریں نہیں آئی، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی کچھ اور قومیں بھی ایسی ہوں گی جنہوں قوم نے جو ہے وہ، لوط ہے قوم شعیب ہے۔ ہاں بہرحال وہ قوم لوط، قوم شعیب سے بھی ہو سکتا ہے، قریش والے جو ہے وہ واقف ہوں، اس کے علاوہ بھی بے شمار دنیا بستی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں رسول آئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ، اس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ تو جو ان کے لیے مناسب تھا نا ذکر جس قوم کا، ان قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جاءتہم رسولہم، ان کے پاس بھی رسول آئے بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے لٹا دیے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر، یعنی اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے، جیسے یہ بیسیکلی محاورتاً استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے وہ بندہ کہتا نہیں ہے کہ بندہ کچھ غلط بات سنے تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، توبہ توبہ توبہ، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ بات وہ کر رہے تھے کہ جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کے پاس جب رسول آئے انہوں نے واضح دلائل پیش کر دیے، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے کہ بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس چیز پر جس پر جو تم اپنے ساتھ لے کے آئے ہو، وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تدعوننا الیہ مریب، اور جس جو ہے وہ دعوت کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہم جو ہے وہ شک میں مبتلا ہیں، الیہ مریب، اضطراب، ہمیں اضطراب میں یہ بات ڈال رہی ہے۔ وہ اضطراب میں بات کیوں ڈال رہی تھی وہ اگلی آیات میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اضطراب میں کیوں پڑھ رہے تھے، وہ شک میں کیوں پڑھ رہے تھے۔ تو رسولوں نے کیا کہا؟ جی ناظر۔ قالت کہا رسولہم ان کے رسولوں نے اف اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکن شک ہے، فاطر السماواتی جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، یدعوکم بلاتا ہے تمہیں، دعوت دیتا ہے تمہیں، لیغفرا تاکہ بخش دے، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم اور مہلت دے تمہیں، الی اجل مسمى قریب کی مدت تک۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ رسولوں نے یہی بات کی
जितने भी रसूल पहले आए उन्होंने यही कहा, क्योंकि ना हर इंसानियत जब भी जहां जहां इंसान बसते रहे हैं वो इस बात पर कायल रहे हैं कि ये आसमान और जमीन को बनाने वाली कोई जात है और उस जात का नाम अल्लाह है। इवन कि कुरैश मक्का भी जो है वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ जो है वो औरों को शरीक ठहराते थे। तो रसूलों ने कहा कि क्या तुम जो है वो अल्लाह के मामले में शक में आते हो, जिसने जो है आसमानों को और जमीन को पैदा किया। वो तो बुलाता है तुम्हें अपनी मगफरत की तरफ, ताकि तुम्हारे गुनाह जो है वो माफ कर दे और तुम्हें मोहलत दे दे एक मुकर्ररा वक्त तक। देखें, जो कौम, अगर कोई कौम भलाई करने वाली हो ना और वो बुराई की तरफ जो है वो मुबतला हो जाए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उनका जो पीरियड है ना, जो टाइम है वो कम कर देते हैं, उनकी मोहलत का टाइम कम हो जाता है। और ऐसी कौम जो बुराई कर रही हो और नेकी की तरफ आना शुरू हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उनका जो अजल मुसम्मा है ना, एक मुकर्ररा वक्त, अल्लाह ताला उनका लंबा कर सकते हैं, यहाँ तक कि ता क़यामत जो है वो उनका अरसा चलाया जा सकता है। तो अल्लाह ताला जो है वो गुनाहों को माफ करने वाला है और वो मोहलत देने वाला है एक खास मुद्दत तक, यानी अचानक अजाब अल्लाह ताला नहीं लाता। कालू, कहा, इन इन अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना। अच्छा, अब ये देखें, ये पिछली आयत हमने जो पढ़ी थी ना, ये कि वो वकालू इन्ना कफरना, कि उन लोगों ने कहा कि हम कुफर करते हैं उस चीज के साथ जिसके साथ तुम भेजे गए हो, यानी जो रसालत तुम लाए हो उससे हम कुफर करते हैं और इसमें हम शक में मुब्तला हैं। ठीक है, और इस चीज ने हमें बड़े इस्तराब में डाल दिया है। ये शक में मुब्तला क्यों हुए, इस तराब में वो क्यों डल गए, उसकी यहाँ पर जो है वो बयान की गई है बात। कालू इन अन तुम इल्ला बशरुम मिसलुना, कि भाई तुम तो हमारी तरह के इंसान हो, खाते पीते भी हो, बीवी बच्चे भी हैं, ठीक है, कमाते भी हो, बाजार में काम भी करते हो, और जो है वो सारे बशरी तकाजे तुम्हारे साथ जो है वो अटैच हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें जो है वो अल्लाह की वही आ रही है और हमें अल्लाह की वही नहीं आ रही। तो इसलिए वो इस तरह में मुब्तला थे। मैंने पहले भी आपसे ये अर्ज की थी कि जो उनका स्टैंड था ना कुरैश मक्का का या पिछली कौमों का, उनका स्टैंड ये था क्योंकि ये बशर हैं, इसलिए ये रसूल नहीं हो सकते। और हम जो स्टैंड आजकल ले रहे हैं ना, वो ये ले रहे हैं क्योंकि हम नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, तो हम कहते हैं क्योंकि ये अल्लाह के रसूल है इसलिए बशर नहीं हो सकते। हालांकि सारे रसूल जितने भी अल्लाह ताला ने जो है वो भेजे हैं वो बशर ही थे। अभी आगे अगली आयत में आ जाएगा। अब वो क्या कह रहे थे, तुरीदूना, तुम चाहते हो, अन तसुद्दूना, कि हमें रोक दो, अम्मा काना याबुदू, उस चीज से जो हम इबादत करते हैं, आबाउना, जो हमारे अबाउ अजदाद भी इबादत किया करते थे जिनकी, फातूना, तो ले आओ भी सुल्तान मुबीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो हमारे पास जो है कोई वाजिया दलील ले आओ, मुराद ये कि कोई हिस्सी मौजूदा लेके आओ। देखें, ये बात जो है ना, ये आ, हर कौम ने अपने जो है वो नबी से की, अपने रसूल से की, क्या कि तुम हमें उस बात से रोकते हो जो बात हमारे अबाओ अजदाद करते आए हैं। तो आजकल क्या ख्याल है, ये मामला यहाँ हमारे मुआशरे में नहीं चल रहे। कोई बरेलवी है तो बरेलवी चला आ रहा है, कोई देवबंदी है तो देवबंदी चला आ रहा है, कोई एल हदीस है तो एल हदीस ही चला आ रहा है। क्यों? हमने जी अपने बाप दादों को देखा है कि हमारे बाप दादा इतने बेवकूफ थे कि वो एल हदीस थे, क्या हमारे बाप दादा इतने बेवकूफ थे वो बरेलवी थे, क्या हमारे बाप दादा इतने बेवकूफ थे वो देवबंदी थे। भाई बरेलवी देवबंदी ये वाबी कुछ नहीं है, असल चीज जो है वो कुरान है और हदीस है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही बात की कि हम जो है वो उस चीज को, तुम हमें रोकते हो उस चीज की इबादत करने से जिस चीज की इबादत हमारे अबाओ अजदाद करते हैं। तो अगर तुम जो है ना वाकई अल्लाह के रसूल हो ना, तो कोई वाजिया दलील ले आओ, कोई मौजूदा, कोई हिस्सी मौजूदा लेके आओ। हिस्सी मौजूदा जैसे पीछे हमने पढ़ा कि जैसे जो है वो पहाड़ फट गए, जैसे जो है वो चश्मे जारी हो जाए, ये हिस्सी मौजूदा ये होता है जिसको महसूस किया जा सकता हो। तो कालत लहुम रुसुलुहुम, कहा उनसे रसूलों ने क्या जवाब दिया। देखिए कितना खूबसूरत जवाब दिया। और ये मुझे नहीं समझ में आती कि आजकल के जो मुल्ला हजरात हैं उनके उनको ये आयत क्यों नहीं नजर आती। कालत लहुम रुसुलुहुम, रसूलों ने उनसे कहा, इन नहनु इल्ला बशरुन, कि बेशक हम जो है वो इंसान ही हैं, मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह के, हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं।
वलाकिन अल्लाह, और लेकिन यमुन्नु एहसान करता है, वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह यमुन्नु एहसान करता है, अला मन यशाउ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिस पर चाहे। यानी वो एहसान क्या है, यानी उसको चुन लिया गया रसूल के लिए, उस पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जो है वो बशर ही थे, इंसान ही थे, हमारी तरह के इंसान ही थे, हमारी तरह के बशर ही थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन लिया था, वो खास जो है वो उनको बना दिया। उन पर जो है जिब्राइल अमीन के जरिए वही नाजिल होती थी। फर्क जो है वो ये है, वो अफजलुल बशर है, याद रखिएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अफजलुल अंबिया हैं, अफजलुल बशर हैं, नबियों के सरदार हैं। यहां तक कह दिया गया कि जब तक तुम अपने माँ बाप से, अपने बाप बेटों से, उनसे उनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं रखोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। तो हमारा अकीदा तो ये है, ठीक है। तो देखें, एक वो मौलाना खाली की भी नज़म है ना कि वो क्या नज़म है नाजी, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इस तरह की नज़म मौलाना खाली ने लिखी हुई है, बड़ी बेहतरीन। अगर किसी आप में से किसी के ज़हन में आ रही है तो वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं। ये हम यही कर रहे हैं ना कि हम क्या कहते हैं आजकल, अल्लाह जो है वो नूर मिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नूर मिन नूरिल्लाह है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के नूर में से नूर है। वली को जो चाहे नबी से बढ़ाएं, वली का रुतबा जो है वो नबी से बढ़ा देते हैं हम। तो इस तरह नहीं हमने करना। हम हमें जो इंस्ट्रक्शन जो है, ये मैनुअल है हमारा कुरान पाक, हमें जो इंस्ट्रक्शन अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो कुरान में दी है, हमने उसके मुताबिक चलना है। तो रसूलों ने भी यही कहा कि हम तुम्हारी तरह के बशर ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहे एहसान करे। वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वमा कान लना, और हमारे लिए नहीं है कि हम ले आए तुम्हारे पास कोई मौजूदा इल्ला बिइज़निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। फिर वही बात आ गई, पिछले दिनों बाजी आशी से भी बात हो रही थी। हम जो है वो अमूमन कहते हैं ओ आपे चाने तोड़दा ते आपे चाने जोड़दा, आपे नहीं जो तोड़दा आपे नहीं जोड़दा, वो अल्लाह के हुक्म से है। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे, कहा करते थे कुम खड़े हो जाओ बिइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो बेसिकली हमारा मंबा और सच्चश्मा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात होनी चाहिए, याद रखिएगा। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए मोमिनीन को, याद रखिएगा। ये बड़ी वाजिया जो है वो निशानियां हैं, दलाइल हैं। तो यहाँ हमारा सबक खत्म हो गया। अगर आपने कोई बात पूछनी है, कोई शेयर करनी है तो आप कर सकते हैं। जी